Hello, ma'am. Hello everyone, can you see me? Hello, sir. We can Hi, see you. hi, great, wonderful. So we have started the session now. I'm recording this session as well. So if at all you'll have queries in the end, you can ask me. And if there is something you would like to watch again, I will be sharing this video with you. You can watch this video again, right? So I've Okay, tried to sir. record this video. Meanwhile, on and off, there'll be people coming in. So I will get off the screen. I will let them in. Then I'll come back in front of the screen. So we'll get going. So I can see some students joined with us. And as you can see, the institute's name is Shubh Language Academy, and this is a French language demo class for you. And we are going to talk about French language, and we will keep it very simple. It is like a beginner's class, एकदम basic class हम सीखेंगे. And if you have questions, doubts, कुछ पूछना है आपको, तो आप बीच में भी unmute करके बोलिएगा, sir, I want to ask something. I'll answer to your question. In the end, you want to ask me something, please do ask me in the end, but feel free to ask, right? आप पूछ सकते हैं मुझसे आराम से, इंग्लिश में पूछिए, हिंदी में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है. All right. So my name is Dr. Jayavardhan Singh Rathod, and I have an experience of 17 years of teaching French. And today we will take up a very simple topic that I will show in front of you. Okay, so today we are going to work on les salutations. So whenever we start learning French, what is important for us is to understand how do we greet in French. French में greetings कैसे देते हैं, कैसे बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है. उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम फ्रेंच में यूज़ कर सकते हैं. तो इंग्लिश में जैसे हम यूज़ करते हैं हेलो या गुड मॉर्निंग, तो फ्रेंच का जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम यूज़ करते हैं, दैट इज, so the word is bonjour. Bonjour. Exactly. So मैं एक बार बोलता हूँ, आप मेरी बात को रिपीट करिएगा. Repeat after me and say bonjour. Bonjour. Exactly, bonjour. So bonjour means hello or good morning, right? This means hello, good morning. Another word that we see in French is good afternoon. अब हम कैसे बोल सकते हैं good afternoon को? Please listen the sound very carefully, then I'll ask you to repeat. So the sound is, the word is rather, all right, I'll request everyone to be on mute. Everyone be on mute whenever I ask your name. Unmute yourself and get me the response, right? आप सब लोग mute पे रह सकते हैं. Great. So that way we will have less of noise in the background. And I'll ask you, you'll unmute yourself and then you'll repeat the word for me. Okay. So the word for good afternoon in French is bon après-midi. Bon après-midi. Right? So I'll ask Advika to repeat for us. Bon après-midi. Bon après-midi. Exactly. Bon après-midi. What does that mean, bon après-midi? Good afternoon. Good afternoon. So if you have to wish someone in the आफ्टरनून टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको ऐसे नहीं यूज करते कि हम दोपहर में किसी से मिले तो उसको कहें बोन après-midi. नेवर. हम हमेशा बोन après-midi काम में लेते हैं लास्ट में. तो लास्ट में लेने का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आप जब दोपहर में 3 बजे, 4 बजे, 1 बजे या 2 बजे किसी से मिलकर जा रहे होते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं बोन après-midi. बोन après-midi इसका मतलब होगा हैव अ गुड आफ्टरनून. हैव अ गुड आफ्टरनून. इसको हम कभी भी नेवर एवर हम कभी भी काम में नहीं लेंगे मिलते समय. हम किसी को इंग्लिश में तो बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून, बट हम कभी भी फ्रेंच में किसी को मिलते समय नहीं बोलेंगे bon après-midi. That's not correct, right? You'd always use it at the end. When you're leaving someone, तब आप यूज करेंगे bon après-midi. तो जब हम मिलेंगे किसी से, तो हम उसे क्या बोलेंगे फ्रेंच में? हम बोलेंगे bonjour. Bonjour, right? Okay, moving ahead. Another word is good evening. That in French is, so the word is bonsoir. 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 एंड में थोड़ा सा र का साउंड ख का आता है, बट आपको परेशानी होना, आपको बहुत सॉफ्टली बोलना है, बहुत इजीली बोलना है, और आपको बोलना है bonsoir. Bonsoir, right? When you say bonsoir, that means good evening. Next is good night. When you are actually going to bed, you want to sleep, तब आप बोलेंगे किसी को फ्रेंच में bonne nuit, which is nuit. So again, the pronunciation for good night in French is bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. That's what you say. So मैं आपके लिए एक बार फटाफट से pronunciation कर देता हूँ चारों शब्दों का. So the first one is bonjour, bon après-midi, bonsoir and bonne nuit. तो ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. हम जब किसी से भी बात करेंगे फ्रेंच में, तो हम सबसे पहले उसको कहेंगे bonjour. और यदि हम दोपहर में उसे बाय बाय कह रहे हैं या उससे विदा ले रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे bon après-midi. और यदि हम किसी से शाम को मिलेंगे, तो हम कहेंगे bonsoir. और अगर हम किसी को गुड नाइट कहेंगे फ्रेंच में, तो हम कहेंगे bonne nuit. तो ये हमें ध्यान रखना है. बड़ा अच्छा तरीका है किसी को
किसी से बात चालू करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ और हम एक्सप्रेशन सीखते हैं इंग्लिश वाले जो हमें फ्रेंच में काम में आएंगे। अगर हमें किसी को कहना है हैव अ ग्रेट इवनिंग, आपकी शाम बड़ी अच्छी बीते, आपकी शाम मंगलमय हो, बहुत अच्छी आपकी शाम हो, ऐसा मैं कामना करता हूं, ऐसा मैं विश करती हूं, तो हम उसको कहेंगे bonne soirée. So you would wish that person bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. हम उसको कहेंगे bonne soirée. Bonne soirée means have a great evening, have a wonderful evening, have a pleasant evening. ये हम जनरली शाम के समय यूज करेंगे। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के घर से जा रहे हैं शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे, तो आप उसको कहोगे bonne soirée, bonne soirée, which means have a great evening. इसी तरीके से अगर आपको कहना है हैव अ ग्रेट डे, तो आप उसको विश करेंगे फ्रेंच में bonne journée, bonne journée, bonne journée, again bonne journée, which means have a great day. मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर से जा रहे हैं दोपहर में 1 बजे, दोपहर में 2 बजे, दोपहर में 3 बजे और पूरा दिन बचा हुआ है, या सुबह 11 बजे आप अपने फ्रेंड के घर से जा रहे हैं अपने घर या कहीं और, तो आप उसको कहोगे bonne journée, bonne journée, which means have a great day, have a wonderful day. ये एक तरीका है जिसमें हम सामने वाले को विश कर सकते हैं एक अच्छा दिन। अगर आपको किसी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इफ यू रियली फेल्ट हैप्पी टू हैव मेट समवन, अगर आपको किसी से मिलकर बहुत अच्छा लगा तो आप उसको कहेंगे फ्रेंच में enchanté. When someone that you met and you really felt happy to have met this person, you would very simply say enchanté. आप उस व्यक्ति को विश करेंगे enchanté. Once again we'll repeat the whole word, that is enchanté, enchanté. enchanté means nice to meet you. अगर आपको किसी से मिलके अच्छा लगा तो आप कहेंगे enchanté. लिखते समय आपको ध्यान रखना है as a girl, if the speaker is a girl, तो वो एक एक्स्ट्रा ई लिखते समय लगाएंगी, राइट? बट बोलते समय देयर इज नो डिफरेंस। व्हेन अ बॉय सेज आपसे मिलके अच्छा लगा, ही वुड से enchanté, एंड व्हेन अ गर्ल सेज आपसे मिलके अच्छा लगा, शी वुड से enchanté. दोनों में कोई फर्क नहीं है, साउंड सेम है, enchanté, enchanté, which means nice to meet you. और अगर आपको किसी को कहना है थैंक यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, तो हम उसको कहेंगे merci, M-E-R-C-I, merci, merci. Merci means thank you, merci. और अगर आपको बहुत अच्छा लगा और आप उसको कहना चाह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, तो आप जिसको हम अ लॉट कहेंगे, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, तो उस केस में हम कहेंगे merci beaucoup, B-E-A-U-C-O-U-P, beaucoup, beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup means thanks a lot. और अगर आपको सिर्फ कहना है थैंक यू तो आप कहेंगे merci. सो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, merci, अदरवाइज merci beaucoup. ऑलराइट, और लास्ट में एक और शब्द हम देख लेते हैं जो है बाय. अब आप किसी से मिले हैं, बातचीत करी है, उसके बाद आप उसको बाय कहना चाहेंगे तो आप कहेंगे, इंग्लिश में बाय है, फ्रेंच में होता है au revoir, au revoir, and the spelling for au revoir is au revoir. This is au and this is revoir, which becomes au revoir. Au revoir. हम इसको au revoir नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ेंगे au revoir. That's a special way to say it. It becomes au revoir, right? So ये हमने कुछ शब्द सीखे हैं किसी से बातचीत करने के लिए फ्रेंच में। तो अगर आपको किसी को कहना है have a great evening, have a wonderful evening, तो आप उसको कहेंगे bonne soirée, bonne soirée. अगर आपको किसी को कहना है have a great day, तो आप उसको बहुत सिंपली कहेंगे bonne journée, bonne journée. यदि आपको किसी को कहना है nice to meet you, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो आप कहेंगे enchanté, enchanté. और अगर आपको किसी को कहना है thank you, merci, thank you very much, या फिर thanks a lot, तो आप कहेंगे merci beaucoup. और अंत में यदि आपको कहना है bye bye, bye, तो आप कहेंगे au revoir, au revoir. आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, राइट? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम अगला टॉपिक देखते हैं कि हम कैसे अपना नाम बताएं फ्रेंच में। फ्रेंच में नाम बताना थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। अपना नाम बताने का जो तरीका है वो है je m'appelle. तो आप जब किसी से बातचीत करेंगे फ्रेंच में तो आप कहेंगे bonjour और फिर कहेंगे je m'appelle ABC XYZ, जो भी आपका नाम है। तो मेरा नाम जय है तो मैं कहूंगा bonjour, je m'appelle जय, je m'appelle, je m'appelle. एक साथ बोलेंगे je m'appelle,
सो हो जाएगा माई नेम इज का फ्रेंच में je m'appelle, माई नेम इज, और जो भी आपका नाम है आप वहां रख देंगे। अब आपको सामने वाले से उसके हालचाल पूछने हैं, तुम कैसे हो और सब कैसा चल रहा है। सो हम पूछेंगे उसको इंग्लिश में, ऑफ कोर्स, हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग। फ्रेंच में बहुत आसान तरीका है उसको पूछने का। तो हम कहेंगे, यू वांट टू से समथिंग, समवन वांट्स टू से समथिंग, नो, ऑलराइट, या यू वांट टू से समथिंग अद्विका, नो, ऑलराइट, इज इट क्लियर टू यू, समझ में आ रहा है आपको? Okay, great. So when you have to ask the question, how are you doing, how are you, or how is it going, और सब कैसा चल रहा है, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, comment ça va। बहुत सिंपल तरीका है, comment ça va। देखिए बहुत सारे साउंड्स हैं जो हिंदी में बहुत इजीली पाए जाते हैं, comment ça va। अब इस तीनों साउंड्स को एक साथ रखना है और थोड़ा सा क्वेश्चन टोन लगाना है, comment ça va, comment ça va, ये आप बोलेंगे तो इसका मतलब है हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, और सब कैसा चल रहा है, comment ça va। तो आप जब अपने फ्रेंड से मिले तो आप बोलिए bonjour, comment ça va, या आप बोल सकते हैं comment ça va, राइट। comment ça va का मतलब है और सब कैसा चल रहा है। तो आप कहोगे पर सर आपने तो कहा था अभी हाउ आर यू होता है, तो ना तो इसमें यू दिख रहा है हमारे को, ना आर दिख रहा है। तो आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना, आपको समझना है कि फ्रेंच के अंदर जब हम पूछते हैं हाउ आर यू तो हम जनरली बोलते हैं और सब कैसा चल रहा है, विच इज comment ça va, comment ça va। बहुत आसान क्वेश्चन है, comment ça va, राइट। सो द क्वेश्चन इज comment ça va। हम एक और तरीके से पूछ सकते हैं, ऑल वेल, सब ठीक है, ऑल वेल, सब ठीक। देखिए हिंदी में भी दो शब्द होते हैं, सब ठीक, और इंग्लिश में भी दो ही शब्द हैं, ऑल वेल। तो फ्रेंच में भी दो ही शब्द हैं, हम कहेंगे ça va, ça va, सब ठीक है, ça va। तो एक तरीका है कि हम कैसे पूछें सब ठीक, ऑल वेल, तो हम कहेंगे ça va। या फिर जो पहला क्वेश्चन था comment ça va, comment ça va, राइट। दीज आर टू क्वेश्चंस इन व्हिच यू कैन आस्क समवन्स वेल बीइंग। आप किसी के हालचाल पूछ सकते हैं, comment ça va या फिर ça va। अब उस पर्सन ने कहा आई एम डूइंग फाइन या फिर इट्स गोइंग फाइन, सब ठीक चल रहा है, तो बहुत सिंपली कहेगा वो व्यक्ति, या तो वो व्यक्ति कहेगा बहुत सिंपली ça va, ça va, सब ठीक चल रहा है, ça va, एवरीथिंग इज गोइंग, चल रहा है। या फिर और अच्छा चल रहा है, ça va bien, ça va bien, bien, ça va bien, which means it's going fine, अच्छा चल रहा है। यहाँ तो सिर्फ चल ही रहा है, लेकिन यहाँ अच्छा चल रहा है। तो अब आपके ऊपर है कि आपके हालचाल कैसे हैं, इज इट जस्ट चल रहा है टाइप्स, या अच्छा चल रहा है टाइप्स। तो आपको पूछेगा वो ça va, तो आप कहेंगे ça va या फिर ça va bien, it depends on how your well-being is, alright। कई बार ऐसा होता है कि हालचाल अच्छे नहीं होते, हमें अच्छा नहीं महसूस हो रहा होता है, हमारी तबीयत खराब है, एग्जाम आने वाला है, तो हालचाल अच्छे नहीं है, राइट। उस केस में हमको बोलना है इट्स नॉट गोइंग फाइन, इट्स नॉट गोइंग फाइन। तो बड़ा आसान तरीका है, तो हमको कहना है उस केस में दावा तो लगाना है, लेकिन बिया नहीं है आपकी बार, अच्छा नहीं है आपकी बार, गड़बड़ है, तो हम कहेंगे ça va mal, ça va mal। किसी ने आपसे पूछा comment ça va, ça va mal, comment ça va, ça va mal, which means it's not going good। और अगर आपके हालचाल अच्छे हैं तो आप कहेंगे ça va bien, right। These are the two ways in which you can tell your positive well-being and your not so positive well-being, alright। और अंत में हम देखते हैं, अगर आपको कहना है see you soon, जल्द मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तो हम कहेंगे उस व्यक्ति को à bientôt। I'll repeat it for you, it will be à bientôt, à bientôt। This is à, you have to open your mouth wide, you have to say à, and you have to say bientôt, à bientôt, à bientôt। à bientôt means see you soon, जल्द मिलेंगे। तो चलिए एक फटाफट से आपके लिए रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं, एक रिकैप है फटाफट से। माय नेम इज के लिए हम बोलेंगे je m'appelle। अगर आपको किसी से पूछना है और सब कैसा चल रहा है, comment ça va। आपको पूछना है सब ठीक, ça va। आपको कहना है सब ठीक है, तो आप कहेंगे ça va। सब अच्छा चल रहा है, ça va bien। अच्छा नहीं चल रहा है, ça va mal। और अंत में अगर आपको कहना है see you soon, तो आप कहेंगे à bientôt, à bientôt। ऑलराइट, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब अगला टॉपिक जो हम देखेंगे आज की क्लास में वो है les articles। फ्रेंच लैंग्वेज में हर एक ऑब्जेक्ट का एक जेंडर होता है। एक पेन जिसको हम कहते हैं स्टीलो, उसका एक जेंडर है, वो है मैस्कुलिन। एक टेबल जो फेमिनिन होती है, जिसको हम ताबल कहते हैं, उसके लिए हमने जेंडर दिया है फेमिनिन।
इसी तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट फ्रेंच लैंग्वेज में, चाहे वो फिर कार हो, वो बॉय ऑफ कोर्स मैस्कुलिन है, गर्ल ऑफ कोर्स फेमिनिन है, लेकिन जो ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे बॉटल है, कंप्यूटर है, चेयर है, वॉल है, हाउस है, इन सभी को हमने जेंडर दिया है फ्रेंच लैंग्वेज में। जनरली ये देखा गया है कि बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ के लिए समझना कि ये क्या है, ये कैसे होगा, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है और हमें प्रैक्टिस के साथ इसको समझना होगा। कई बार ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम जब कभी भी एक नया शब्द सीखेंगे तो उस नए शब्द के साथ उसका जेंडर हम हमेशा याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं कि फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ मैं शब्द लिखता हूं आपके लिए। स्टीलो, अ पेन, पेन को हम फ्रेंच में स्टीलो बोलते हैं। साथ में हम देख सकते हैं जो कार है उसको हम फ्रेंच में बोलते हैं वॉइture, वॉइture। मैं प्रोनाउंसिएशन आपको सिखाऊंगा थोड़ा बहुत। So that is stylo. The next one is voiture. एक और हम देखते हैं chaise, 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 which means a chair. तो चेयर है, या फिर हम देख सकते हैं एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, ये इंग्लिश का शब्द है टेबल। आप देख सकते हैं टेबल जैसा लगता है पर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ताब्ल, ताब्ल। तो इसको हम लिखते हैं अ टेबल। ऑलराइट, अब देखिए फ्रेंच में मैंने जब लिखा है स्टीलो, वॉइture, chaise, table, तो इनका एक जेंडर है। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं ताकि मैं कुछ और वर्ड्स इसमें फिट करूं। ऑलराइट, यहाँ पे हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं यहाँ पे मैं एक और शब्द लेता हूं। जो नोटबुक होती है उसको हम फ्रेंच में बोलते हैं काइये, CAHIER, काइये। काइये इज व्हाट वी से टू अ नोटबुक, दैट्स एन आई, काइये। ऑलराइट, अब हमें क्या ध्यान रखना है, फ्रेंच लैंग्वेज में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक जेंडर होता है। तो आज अगर आप पहली बार इन शब्दों को देख रहे हैं तो इनका जेंडर याद कर लीजिए। स्टीलो इज ऑलवेज मैस्कुलिन, ये मैस्कुलिन होता है। वॉइture इज ऑलवेज फेमिनिन, chaise इज ऑलवेज फेमिनिन, table इज ऑलवेज फेमिनिन, काइये इज ऑलवेज मैस्कुलिन। यानी इनका जेंडर फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज देम। जैसे हिंदी में होता है ना मेरा घर, आप कभी ये नहीं बोलते मेरी घर, क्योंकि आपको पता है जो घर है वो मैस्कुलिन है। और आप कभी ये नहीं कहते मेरा गाड़ी, आप हमेशा कहते हो मेरी गाड़ी, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि गाड़ी जो शब्द है वो फेमिनिन है। किसी ने आपको बैठ के लिस्ट तो नहीं दी थी कि याद कर लो, आपने धीरे धीरे सुना, समझा और आपको याद हो गया। इसी तरीके से फ्रेंच में भी आप धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करेंगे और ध्यान रखेंगे कि उसका जेंडर क्या है। तो चलिए अब हम ध्यान करते हैं इस वाले टॉपिक पे जिसका नाम है les articles indéfinis, les articles définis। जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर हमारे पास इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, उसी तरीके से फ्रेंच में भी हमारे पास इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इंग्लिश में जो हमारे पास है ऑप्शंस, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपके लिए लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। इज इट विजिबल? राइट, ओके ग्रेट। सो इसमें इंग्लिश में हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, अ, एंड, सम, और यहां पे हमारे पास होता है द। जब कभी भी आप कहते हैं दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, कौन सा पेन है फिक्स नहीं है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ चेयर, दैट्स एन अम्ब्रेला, राइट, और दीज आर सम फ्लावर्स। तो उस केस में हम एंड सम काम में लेते हैं उन चीजों के लिए जो इम्प्रिसाइज है, जो फिक्स नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी फिक्स नहीं है, कोई भी हो सकता है। यह एक पेन है, मैं हिंदी में कभी ये नहीं बोलूंगा ये है वो पेन है। अगर मैंने कहा ना ये वो पेन है तो इसका मतलब है कौन सा वाला पेन है ये, तो वो हो जाएगा डेफिनेट। पर जनरली मैं बोलता हूँ ये पेन है, यह एक पेन है, दिस इज अ पेन, राइट। सो जो इंग्लिश में होता है अ एंड सम, वो फ्रेंच का होता है आर्टिकल इंडेफिनी। और हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, अ, यून, दे। अ हम लगाएंगे मैस्कुलिन सिंगुलर चीजों के पहले, यून लगाएंगे हम फेमिनिन सिंगुलर चीजों के पहले, और दे लगाएंगे प्लूरल चीजों के पहले। DES है ये, मैं फिर से लिख देता हूं आपके लिए, DES। ऑलराइट, यानी अगर मुझे कहना है अ पेन, अ पेन, एक पेन, अ पेन, और मैं आपको कहूं कि पेन को फ्रेंच में बोलते हैं स्टीलो, और अगर आपको पता चल गया कि स्टीलो इज मैस्कुलिन तो उसके पहले मैं हमेशा यूज करूंगा UN। इसका साउंड होता है अ, अ। अगला जो शब्द है उसका साउंड है यून, 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 वो फेमिनिन के साथ आएगा यून। और दे है DES, उसका फिर से साउंड बताता हूं मैं आपको, दे, दे,
और ये हमेशा प्लूरल के साथ आएगा, चाहे वो फिर मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हम लोग। अगर मुझे कहना है अगर मुझे कहना है अ पेन, तो मैं फ्रेंच में बोलूंगा अ स्टीलो। अगर मुझे कहना है अ कार, तो मैं कहूंगा यून वॉच्यू। और अंत में यदि मुझे कहना है सम, लेट्स टेक सम एग्जांपल, सम टेबल्स, तो मैं कहूंगा दे ताबू। अब ध्यान रखिएगा, मुझे इसमें एस लगाना है, मुझे प्लूरल बनाना पड़ेगा, तभी उसका सेंस आएगा, बिकॉज प्लूरल के पहले ही हम दे लगाएंगे, सो हो जाएगा दे ताब्ल। सो आपने यहां पे देखा कि हम किस तरीके से इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। हम यूज करते हैं मैस्कुलिन के पहले, यून हम यूज करते हैं फेमिनिन के पहले, और हम दे यूज करेंगे प्लूरल के पहले। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जेंडर क्या है, और उसको उसका जेंडर जानने के लिए हमें डिक्शनरी की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें लोगों से पूछना पड़ेगा जो उस लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हुआ छोटा सा टॉपिक हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स का। यही चीज हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और हम बात करेंगे अब डेफिनेट आर्टिकल्स की। जिस तरीके से इंग्लिश में होता है THE द, इसका मतलब है आप जब कहेंगे इस प्रकार की चीज, दिस इज द पेन, दिस इज द चेयर, तो उस केस में वो बहुत स्पेसिफिक है, कौन सी चेयर, वो वाली चेयर, कौन सा पेन, वो वाला पेन। तो फ्रेंच में हमारे पास 4 ऑप्शंस खुलेंगे। पहला है ल, दूसरा है ला, फिर है ले, और चौथा है एल अपोस्ट्रोफ। जो ल है वो हम यूज करते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर से पहले, ला हम यूज करेंगे फेमिनिन सिंगुलर से पहले, ले हम यूज करेंगे प्लूरल के पहले, और लास्ट में हम जब वॉवल से स्टार्टिंग वर्ड होगा हमारा, उसके पहले हम यूज करेंगे, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, तो मैं एस लगा देता हूं, वॉवल सिंगुलर से पहले एल अपोस्ट्रोफ। अगर मुझे अब कहना है द पेन, तो हम सबको पता है कि पेन को फ्रेंच में बोलते हैं स्टीलो। और अगर मुझे बोलना है द पेन, तो मैं क्या इनमें से यूज करूंगा? अगर मैस्कुलिन के लिए ल यूज करता हूं, फेमिनिन के लिए ला यूज करता हूं, प्लूरल के लिए मैं ले यूज करता हूं, और मैं एल अपोस्ट्रोफ यूज करता हूं वोवेल से सिंगुलर चालू होने वाले शब्द के पहले। तो स्टीलो के पहले मैं यूज करूंगा LE। ले स्टीलो, स्पेलिंग बताइए। LE, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है, अच्छे से बोलिए, साथ में बोलिए ल। ल, वेरी गुड, वन सेकेंड रिपीट एंड से ल। ल, क्योंकि अगर हम इसको ल एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम गलती से इसको ले बोल देते हैं तो हम चले जाएंगे LES की तरफ। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको ले नहीं पढ़ना, ये ले नहीं है, ये है लो, ये लो है, इसका साउंड है लो। और अगर कोई चीज फेमिनिन है, मान लीजिए मुझे बात करनी है द चेयर, दिस इज द चेयर दैट माय ग्रैंडफादर गिव टू मी, दिस इज द चेयर, ये वो वाली कुर्सी है जो मुझे मेरे दादाजी ने दी थी, तो हम यूज करेंगे ला, और उसके बाद हमारा फेमिनिन ऑब्जेक्ट आ जाएगा शेज, तो हम इसको पढ़ेंगे ला। ला शेज मीन्स द चेयर, द चेयर। और अगर मैं बात करता हूं खूब सारी चीजों की, यहां से हम कोई प्लूरल चीज उठा लेते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं, लेट्स टेक फ्लावर्स। अब मैं आपको एक और शब्द सिखाता हूं, फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जो होते हैं उसको फ्रेंच में बोलते हैं FLEURS, फ्लर, फ्लर, फ्लर मतलब फ्लावर्स। और ये प्लूरल है, तो प्लूरल के केस में हम यूज करेंगे ले, LES, तो ये हो जाएगा ले। तो आप ध्यान रखिएगा, ले फ्लर मतलब द फ्लावर्स। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, द पेन, द चेयर, द फ्लावर्स। और इसमें एक और ऑप्शन होता है एल अपोस्ट्रोफ। एल अपोस्ट्रोफ मैं उन चीजों के पहले काम में लूंगा जो वॉवल से चालू होंगी और सिंगुलर होंगी उस केस में। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने ऐसा कोई ऐसा वर्ड देखा नहीं है जो वॉवल से चालू था, लेकिन फ्रेंच में कई ऐसे शब्द होते हैं जो वॉवल से चालू होते हैं, जिसके पहले आप एल अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक शब्द लेता हूं, लेट्स टेक ओइज़ो। ये एक वर्ड है ओइज़ो, ओइज़ो। ओइज़ो का मतलब होता है बर्ड, जो पक्षी होता है उसको बोलते हैं हम ओइज़ो, ओइज़ो, ओइज़ो। सो ये वॉवल से चालू है, तो मैं इसके पहले डेफिनेटली एल अपोस्ट्रोफ लगाऊंगा, तो ये ओइज़ो की जगह बन जाएगा लुआज़ो, लुआज़ो, राइट, लुआज़ो, द बर्ड। और आपके लिए बहुत एक सिंपल सा वर्ड भी मैं ढूंढ के बता सकता हूं, वो है एकोल, ECOLE। ये शब्द है, इसका मतलब है स्कूल, एकोल, एकोल, एकोल। तो एकोल मतलब स्कूल। और अगर मुझे कहना है द स्कूल, तो मैं यूज करूंगा एल अपोस्ट्रोफ। सो एल अपोस्ट्रोफ यूज करूंगा तो बन जाएगा l'école,
l'école, जिसका मतलब हो जाएगा द स्कूल, द स्कूल। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक तरफ हमने देखे हैं indefinite Sir? articles और एक तरफ definite articles. Yes, tell me please. In my French book, one sentence was given that the shape of the France is hexagon. Yeah, And at last, that hexagon was written as apostrophe and then hexagon. yeah, you're right. So as a vowel, एब्सोल्युटली। सो होता क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एच जो लेटर है उसका कोई साउंड नहीं होता, आप एच लेटर का साउंड निकाल ही नहीं सकते फ्रेंच लैंग्वेज में। तो एच को नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, एक्सागोन पढ़ा, एच ई एक्स ए था, तो एच को नहीं पढ़ा तो ई को पढ़ा, तो ई के चक्कर में आपको एल अपोस्ट्रोफ लगाना पड़ा। तो जो भी शब्द एच लेटर से चालू होते हैं फ्रेंच में, हम उनको वोवेल कैटेगरी में डालते हैं। दैट्स करेक्ट, राइट? सो इट विल बी लेक्सागोन, लेक्सागोन, दैट्स द शेप ऑफ फ्रांस। ग्रेट, ऑलराइट। So you have seen the indefinite articles and the definite articles. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक और करवाऊंगा और that will be the last one and then I'll take your questions if at all you have any. अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव पजेसिव। एडजेक्टिव पजेसिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमारा पोजीशन बताते हैं। मेरा पेन, तुम्हारा घर, उसकी गाड़ी, उनके कपड़े। ये जब हम चीज बोलते हैं तो हम पोजीशन बताते हैं उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, उस ओनर का, राइट? तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माई पेन, योर हाउस, हर बुक, हिज कार। तो ये जो माई है, ये जो योर है, ये जो हिज है, ये जो हर है, ये सारे होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव पजेसिव हैं जो हम देख सकते हैं इस तरीके से। ये जो पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं समझने में कि हु द ओनर इज, ओनर कौन है, कौन इसका जिसके पास ओनरशिप है इस चीज की। तो हम देखेंगे कि फ्रेंच के अंदर हमारे पास सबसे पहले वील सी हु द ओनर्स आर। ये हमारे ओनर्स हैं, इनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं इसमें होता है हमारे पास je, tu, मैं आपको बता दूंगा। je का मतलब है il, je का मतलब होता है I which means I, tu का मतलब है you, right? il मतलब he and l का मतलब होता है she, nu का मतलब होता है we, वो का मतलब होता है यू, और अंत में इल का मतलब होता है दे, और एल का मतलब भी होता है दे। सो इल मीन्स मैस्कुलिन प्लूरल एंड एल मीन्स फेमिनिन प्लूरल। ऑलराइट, सो आफ्टर हैविंग नोन, एक बार हमें पता चल जाए कि ओनर कौन है, क्या मेरी बात हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो ये सारे लोग हमें फ्रेंच में मिलते हैं। सो आई विल जस्ट शिफ्ट इट लिटिल बिट ओवर देयर सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। ओके, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ज की बात करेंगे तो मेरी बात होगी, ट्यू की बात होगी तो तुम्हारी बात होगी, इल एल की बात करेंगे तो उसकी बात होगी, राइट? कोई थर्ड पर्सन है, वो एक मेल पर्सन हो सकता है, फीमेल पर्सन हो सकती है वो। नु मतलब हमारी बात होगी, वो मतलब आपकी बात होगी, आप सभी लोगों की बात होगी। एंड इन द एंड यू हैव इल व्हिच मींस दे एज इन अ ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन पीपल, एंड एल मींस दे अ ग्रुप ऑफ फेमिनिन पीपल। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये सारे लोग हैं। अब इन लोगों की चीजों का ओनरशिप का कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें टेबल बनानी होगी। सो हाउ डू वी डू? आई जस्ट Okay, what I'll do is that okay, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ वापस से। Alright, so masculine, feminine and plural। अगर वो चीज masculine होगी तो हमें इस टेबल में जाना है, feminine में इसमें और plural में इसमें। अब हम वो टेबल बनाते हैं। ज के केस में हमारे पास जो ऑप्शंस खुलते हैं that is मो, मा, मे। मो, मा, मे। अगर वो चीज मेरी है, राइट? मैं जैसे हिंदी में बोलता हूँ ना, मेरा, मेरी, मेरे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े। तो अगर वो चीज मैस्कुलिन है तो हम यूज करते हैं हिंदी में मेरा, फ्रेंच में क्या यूज करेंगे? मो। हिंदी में अगर वो चीज फेमिनिन है और वो मेरी है, मेरी गाड़ी, तो मैं फ्रेंच में यूज करूंगा मा। और अगर हिंदी में मैं प्लूरल के लिए मेरे काम में लेता हूं तो फ्रेंच में मैं यूज करूंगा मे। ये MES को मेस नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? मे। तो इसका साउंड हो जाएगा मो, मा, मे। रिपीट कीजिए, मो, मा, मे। Yeah, unmute yourself and say it once again with me. Mo, ma, me. Mo, ma, me. Exactly. Mo, ma, me. Right. So mo, ma, me. ये साउंड हमें याद रखना है। ये बताएगा कि ये ओनर कौन है, मेरी बात हो रही है। आई एम द ओनर, तो मेरी चीजें होंगी, तब मैं मो काम में लूंगा, मैं मा काम में लूंगा और मैं मे काम में लूंगा, लेकिन उस चीज को भी तो लिखूंगा बाद में। जो भी चीजें देखी है वो हम देखते हैं आगे। अगर तुम्हारी बात होगी, अगर लेट्स गेस कि अगर क्योंकि केस में मुझे मो का तो मच जाता है, तो आप मुझे सीरीज बता सकते हैं? मो बन गया तो मां बन जाएगा ता।
और मे बन जाएगा ते, तो ता ते, विच इन हिंदी ट्रांसलेट्स एज तेरा, तेरी, तेरे, राइट। ये एकदम हिंदी के अंदर आपको इजीली मिल जाता है, तो आपको समझ में आएगा। उसकी बात करेंगे, उस बॉय की बात करेंगे, उस गर्ल की बात करेंगे, तो हो जाएगा सो, सा, से, तो सा से, उसका, उसकी, उसके। अगर हमारी बात करेंगे तो हमारा, हमारी, हमारे, तो फ्रेंच में हो जाएगा नोत्र, नोत्र, नो। ये थोड़ा सा अलग चलेगा, इसको आप ध्यान रखना, आपको सेम साउंड में नहीं रखना। शुरुआत के 3 सेम साउंड में चलते हैं, नोत्र, नोत्र, नो। और आपकी बात करूंगा तो आपका, आपकी, आपके, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके कपड़े। तो मैं कहूंगा फ्रेंच के अंदर वोत्र, वोत्र, एंड द लास्ट वन विल बी वो, VOS। और अगर हम बात करेंगे प्लूरल की, तो हम कहते हैं उनका घर, उनकी गाड़ी, उनके कपड़े। तो यानी ओनर खूब सारे लोग हैं, तो उस केस में हम यूज करेंगे लर, लर एंड लर, LEURS। तो आपको पहले इस टेबल को ध्यान में रखना है कि ये टेबल हमें इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमें समझ में आना चाहिए कि ये टेबल को कैसे काम में लेना है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो अगर मैं मेरी बात करूंगा तो आई गो फॉर मोमा में, तुम्हारी बात करूंगा तो तोताते, उसकी, उसकी बात करूंगा बॉय गर्ल की तो सोसा से, हमारी बात करूंगा तो नुत्ख, नुत्ख, नो, आपकी बात करूंगा तो वुत्ख, वुत्ख, वो, और उनकी यदि बात करूंगा तो लख, लख, लख। ये टेबल हमें पहले समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम यूज करेंगे उन नाउन्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को जिनको हमने भी देखा था पिछले स्लाइड पे। तो अब इस बेसिस पे यदि मुझे कहना है मेरा पेन, मेरा पेन, बता सकते हैं पेन को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? एनी गेस? स्टीलो, स्टीलो इज स्टीलो, परफेक्ट। स्टीलो। अब स्टीलो आपको याद है मैस्कुलिन है फेमिनिन है? मास्कुलिन, मैस्कुलिन। तो ये तो कंफर्म बात है कि हम इस कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि मैस्कुलिन है तो यहां आ जाएगा। मैस्कुलिन है ना, M लिखा हुआ है। तो या तो अब मेरा पेन है तो कौन सा वर्ड यूज करूंगा बताइए? एनीवन? व्हाट इज द राइट आंसर? माय पेन। नो स्टीलो, Exactly. So the right answer is, I'll try to push it a little bit on that side. Okay. Okay, I think it's easier. चलिए यहाँ पे थोड़े से हम कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। सो माय पेन, आपने कहा कि पेन को सर स्टीलो बोलते हैं, चलिए स्टीलो लिख दिया। और हमने देखा कि हमको यूज करना है मो, तो मो स्टीलो, मेरा पेन, राइट। अगर मुझे कहना है योर पेन, तुम्हारा पेन, योर पेन, तो कैसे बोलूंगा? एनीवन? स्टीलो, और स्टीलो के पहले आपने क्या नो बोला? स्टीलो, तो स्टीलो, तुम्हारा पेन, बिकॉज हम इसी कैटेगरी में घूमेंगे। जब हमने पेन को चूज कर लिया है तो वी विल बी मूविंग इन दिस कैटेगरी। वी कैन नॉट गो टू फेमिनिन, वी कैन नॉट गो टू प्लूरल। हम प्लूरल में जा नहीं सकते ना फेमिनिन में जा सकते हैं। हिंदी में भी तो यही बोलते हैं, मेरा पेन, तेरा पेन, उसका पेन, हमारा पेन, आपका पेन। हम ये थोड़ी कहते हैं मेरा पेन और तेरी पेन। नो, अगर मेरा पेन है तो फिर पूरी कैटेगरी सेम रहेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द ऑब्जेक्ट एंड आइडेंटिफाइड द जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू विल हैव टू मूव इन द सेम कैटेगरी, राइट। चलिए अब हम एक और चीज देखते हैं। हमने देखा था एक चीज थी टेबल। टेबल इज फेमिनिन, याद है आपको? टेबल को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? ताबल, वेरी गुड, ताबल। अगर आपको बोलना है हर टेबल, उसकी टेबल, दिस इज हर टेबल, दिस इज को छोड़ दीजिए, अभी आपको इतना सा बोलना है हर टेबल। किसी ने पूछा किसकी टेबल है, आपने कहा दिस इज हर टेबल। हर टेबल कैसे बोलेंगे? हर, बताइए। इतनी बड़ी टेबल में, बताइए टेबल फेमिनिन है मैस्कुलिन है? टेबल, टेबल जो शब्द है, it's feminine, it's feminine, right? It's feminine. So you go in this category. अब किसकी टेबल है? It's not my table, it's not your table, it's not our table, it's not your table, it's not their table. Whose table is this? It's his table और her table. तो ये जो सा है ये हमारा राइट आंसर है, सा ताबल, बिकॉज इट कैन बी her table और his table, राइट? दोनों ठीक है, बिकॉज जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि दोनों ही ठीक है। जिस तरीके से हिंदी में बोलते हैं ना उसकी टेबल, तो हमें नहीं पता किसकी टेबल है, कोई बॉय है ओनर या गर्ल है ओनर, वी डोंट नो। इन द सिमिलर मैनर वी डोंट नो इन फ्रेंच ईदर
कि वो ओनर कौन है, कि वो बॉय है या गर्ल है। ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट पता है हमारे को किसकी बात हो रही है, बट जनरली हवा में ये सेंटेंस बोल देंगे ना, उसकी टेबल। किसकी टेबल? सिमिलरली इन फ्रेंच व्हेन यू से उसकी टेबल यू वुड से सा ताब्ल। क्लियर है सभी को? फ्रेंच लैंग्वेज में आप ओनर की बात नहीं करते, आप उस ऑब्जेक्ट की बात करते हो। ओनर को तो आइडेंटिफाई कर लोगे एक बार टेबल में, लेकिन फिर उस ऑब्जेक्ट का जो जेंडर है उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाले जो एडजेक्टिव पॉसेसिव है वो यूज करने हैं। एक दो और हम देखते हैं। अगर आपको कहना है लेट्स से आर एंड द वर्ड वाज कार। कार याद है आपको? कार होती है फेमिनिन और कार का साउंड होता है वोआट्यूर। वोआट्यूर, वेरी गुड, VOITURE, वोआट्यूर। और अगर मैं आपको कहूं कि कार फेमिनिन है और आपको अब चेंज करके मैं सेंटेंस बोलता हूं, उनकी कार, देयर कार, उनकी कार, देयर कार। हाउ डू यू से देयर कार? इफ आई टोल्ड यू कार इज फेमिनिन, हाउ डू यू ब्रिंग देयर? ओके, चलिए देखिए, इसमें से तो कुछ भी यूज नहीं करना है हमें, इसमें से सिर्फ ढूंढना है कि जाना कहाँ है। ये तो ढूंढने के लिए काम में आएगा। किनकी कार है? उनकी कार है, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। मेरी कार नहीं है, तुम्हारी कार नहीं है, उसकी कार नहीं है, हमारी कार नहीं है, आपकी कार नहीं, उनकी कार है, तो इस कैटेगरी में आ गए। अब इसके अंदर आपके पास तीन शब्द हैं, या तो ये है या ये है या ये है। अब आप बताइए कि कार मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि प्लूरल है? यहाँ पे प्लूरल होता तो ऐसा लगता है, यहाँ पे सिंगुलर है, फेमिनिन है, तो राइट आंसर इज लर, LEUR, लर वॉच्यूर। सो देयर कार मीन्स लर वॉच्यूर, लर वॉच्यूर इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है आपको? सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सबसे पहला। दूसरा, उसका जेंडर क्या है, वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि प्लूरल है। उसके बाद आपको उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि उसका ओनर कौन है, वो मेरी चीज है कि तुम्हारी चीज है कि उसकी चीज है। अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? ओके, लेट्स ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस. Okay, so I'll keep this sheet intact. I'll shift it a little bit up so that you'll make some sentences. मैं आपके साथ 5 sentences बनाता हूँ and then we'll wrap up. अगर मैं आपको इतना सा बता दूं कि it is को फ्रेंच में बोलते हैं say and these are को बोलते हैं okay. एक बार आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। हम अब बोलेंगे दिस इज या इट इज, हम इस इट इज और दिस इज दोनों बोल सकते हैं। ओके, दिस इज या इट इज, इन दोनों को फ्रेंच में बोलते हैं से, C''EST, C''EST, से। जो हिंदी का होता है ना से, ये साउंड है से, और ये है ससों। से मतलब दिस इज या इट इज, एंड ससों मतलब दीज आर। अब ये मेरा पेन है, ये मेरे फ्लावर्स हैं, मुझे ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं, तो मैं आपके लिए 3-4 सेंटेंसेस लिखता हूं यहाँ पे और उनको ट्रांसलेट करेंगे हम फ्रेंच में। तो पहला सेंटेंस है दिस इज माई पेन। सेकेंड, दीज आर हर, लेट्स से उसके पास वील टेक चेयर्स, हर टेबल्स ले लेते हैं, these are her tables। और एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं, this is our, okay, this is our car। हाँ, ये अच्छा है, ये हमारी गाड़ी है। ओके, सो आपके लिए मैंने ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। फटाफट से आप 1 मिनट का समय लीजिए, और स्क्रीन पे आपको अगर अच्छे से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ सो दैट इट्स विजिबल एंड स्टिल वी आर एबल टू राइट ऑन इट। ओके, चलिए, टेक अ क्विक मिनट, ट्राई कीजिए दिस इज माई पेन। और मैंने आपको बताया है कि जो दिस इज होता है फ्रेंच में दैट इज से। सो इतना सा हिस्सा हमें पहले ही मिल गया कि तो से हो जाएगा। सर ने सिखाया है, मुंह मतलब माइक क्या होता है वो आपको पता है, और पेन पता है हमें क्या होता है। चलिए, सो पहले वाले का हो जाएगा से, तो स्टीलो जो है वो मैस्कुलिन है, तो हम माँ लगाएंगे या मुंह लगाएंगे? मैस्कुलिन के कारण हम लगाएंगे मो, से मो स्टीलो, इट इज माई पेन। दूसरा, दीज, या बताइए Sir, if the pen is mine, like it is my pen, so we are referring to us, no? So it should come as feminine. देखिए,
पेन जो है उसका जेंडर है मैस्कुलिन। अब हमें और कोई चीज का लेना देना नहीं है और कोई चीज इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी, राइट। पेन का जेंडर मैस्कुलिन है और किसका पेन है, मेरा पेन है, तो मैं इस वाली कैटेगरी से मुंह उठा के ले आऊंगा। दैट्स इट। क्लियर है आपको? आपको और कोई टेंशन नहीं लेनी। आपका क्या जेंडर है, आप बॉय है वो गर्ल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे हिंदी में आप भी क्या बोलते हो, आप बोलते हो ना मेरा पेन, और बॉय भी बोलता है मेरा पेन, तो हम खुद किस जेंडर के उससे फर्क नहीं पड़ता, उस ऑब्जेक्ट का जेंडर क्या है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। से मोस्ट जीरो। दूसरा देखते हैं फटाफट से, दीज आर हर टेबल्स, ये उसकी टेबलें हैं, ये उसकी टेबल्स हैं, राइट। दो तीन टेबल्स हैं, किसकी हैं, उसकी टेबल्स हैं। सो बताइए दीज आर को क्या बोलते हैं फ्रेंच में, ससों, ससों, राइट, ससों हो जाएगा। और डैश करके ताब्ल लिख देता हूं, प्लूरल में टेबल्स को बोलते हैं ताब्ल। और बताइए मुझे कि आप कैसे बोलेंगे हर, हर। खूब सारी टेबल्स हैं, ध्यान रखिएगा। किस कैटेगरी में जाएंगे, हर कौन सी कैटेगरी में है, स्पेलिंग SES. wonderful, SES is the right answer. Ce sont ses tables, ce sont ses tables, these are her tables, exactly. और अंत में this is our car, ये हमारी गाड़ी है। हम खूब सारे लोग हैं फैमिली में, हम सबकी ये गाड़ी है। तो क्या हो जाएगा, से डैश voiture। चलिए फिल करिए डैश voiture के केस में। बताइए कहां पे हैं हम लोग इसके अंदर, वेयर आर वी, हम लोग यहां पे हैं। तो मैस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया, और ये हो गया हमारे पास प्लूरल। मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूं सो दैट्स विजिबल फॉर यू। ओके, विल मेक इट दिस वे। सो ये हम हैं, ये क्या हो जाएगा, दिस इज नोत्र, हमारा, हमारी, एंड दिस इज प्लूरल। सो बताइए कौन सा आप यूज करेंगे, अगर कार है हमारे पास फेमिनिन, Notre. this one, notre, Notre. NOTRE, very good. C'est notre voiture, which means this is our car. All right, so that's our car. So that was a little idea about adjective possessive. I will be sharing the PDF of this as well with you, perhaps, so that you get to know more about it. And that's how we are towards the end of this class. If you have any questions, do ask me. कुछ questions हैं आपके? हमने 3 topics करे हैं आज। पहला हमने देखा है greetings, दूसरा हमने देखा था definite indefinite articles, और लास्ट में हमने देखा था adjective possessive। बताइए any questions? Yes. Any questions? No? Is that clear to you? Yes, sir. Yeah, tell me. That's Pavika. Sir, what is the answer for combien de livres? Combien de livres as-tu? Combien de livres as-tu? चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ इस क्वेश्चन को पहले। Okay, so you want to ask combien de livres as-tu? All right. So combien de livres as-tu? That means how many books do you have? तो हम इसमें उस टेंस के साथ और उस वर्ब के साथ जाएंगे जो अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है। इसमें वर्ब हम काम में लेंगे avoir, which means to have। avoir का मतलब होता है to have, तो हम यहाँ पे काम में लेंगे j'ai, I have, j'ai डैश, और j'ai कितनी संख्या है, un livre, एक किताब है तो un livre, j'ai deux livres, अगर मेरे पास 2 किताबें हैं तो deux livres, इस तरीके से, राइट। j'ai un livre, j'ai deux livres, जितने भी बुक्स आपके पास पावेगा आप बता देंगे। j'ai beaucoup de livres, I have a lot of books. Is that clear? Yes, sir. Okay, great. All right, so with that, yeah, you want to say something? Yes, sir. बताइए। When we like add s to any object, we are not pronouncing s. Why? We never Like, pronounce it. in English, we do. are saying table, table. Yes. In In French, French, we are not saying. never, never ever. फ्रेंच में कभी भी हम प्लूरल वाला एस नहीं पढ़ते हैं, इसलिए जब हमको ये जवाब देना है कि मेरे पास 2 बुक्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, j'ai द लीव्र। तो आप कहोगे पर सर मुझे कैसे पता चलेगा कि लीव्र मैंने सिंगुलर बोला या प्लूरल बोला, तो वो प्लूरल है क्योंकि उसके पहले हमने द लगाया है, j'ai द लीव्र, इससे पता चलेगा, राइट। तो यू नेवर एवर प्रोनाउंस द एस लेटर इन द एंड व्हिच शोज द प्लूरलिटी। All right, so if you don't have any more questions, we are at the end of the session. I'll quickly take you back to our first slide that shows us that we are here for the demo session, and this is what we are trying to give to you. All right, so here we are with my phone number and my name. If at all you have any more queries, please feel free to write to me on this number, and then see you next time. All right, take care. Au revoir. Wow. Au revoir.
Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू